سنة تيمة ابتدائي كور مس كونتر وي ابتدائي كلام فوتبال نصيحت ہے کہ ہم کی مشتق تمہارا سر محترم امن صاحب ضابط صاحب اگو مجا محبت پیدا تھے سنة ٹیم مثال بہت مدو ٹیم کرتے على قراءة ٹیم سنجھنے بس گئے کہ انسان مدو راگ سے کوشش تو مدو سے کوشش تو میں انا دعا ہے کہ سنة ٹیم کامیاب ہو نوم پیدا تھو علاقار کا پیدا تھو ضلع کا تھو شعبار کا تھو پاکستان لیول کے تھا انٹرنیشنل لیول کے تھا انشاءاللہ تھا تو ایسے جگ گا تعاون میں ایسے کرتے ہوئے شکریہ ساتھی مہربانی راجہ مقبول صاحب حالات و اظہار سیگا مجموعی حالات و صحیح کرتا ہے تو ساتھی نے ایسے سینئر استاد کا بیانات ولایت استاد تو ایسے خواہش بھی کہ اس کا پرچار موری اسوسا شیئر تو ایسا خوشی محسوس ہوئی مجھے تقاریریں تو نہیں آتی ہیں کہ فٹبال کے بارے میں آپ بتا سکتا ہوں اس حوالے سے جب بھی میری ضرورت پڑی میں کاغذات چاہے گراؤنڈ میں چاہے باہر میں اب دوسری بات یہ ہے کہ فٹبال کی ترقی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے جتنے زیادہ گراؤنڈ ہوں گے اتنی ترقی ہوگی جتنے زیادہ ٹورنامنٹ ہوں گے کھیل کو ترقی ہوگی سکول لیول پر ٹورنامنٹس ہوں پہلے ہوتے تھے کالج لیول پر ٹورنامنٹ ہوں این اے لیول پر ٹورنامنٹ ہوں تو فٹبال کو ترقی ہی ترقی یہ ہماری حکومت جو ہے بہت کوشش کر رہی ہے ہمارے ریاض جو ہیں یہ خود بھی کھلاڑی رہے ہیں اس کو بھی جو کچھ اس حوالے سے کچھ جو کچھ کرنا چاہیے اس کے بعد ہمارے جو صدور ہیں ان کو چاہیے اپنی دلچسپی سے فٹبال کو ترقی دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹورنامنٹ کروائیں وہ اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا ایسے ساتھی سینئر موسٹ سینئر کھلاڑی کا بیان ایسے ریاض صاحب پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں تو ایسے ہی مطلب خواہشیں کہ ان کا سوچا تو خیالات و اظہار تو مہربانی بھائی جناب ریاض صاحب بسم الله الرحمن الرحيم من جون رار انا سبورتس زي الطابور واستبرد وشغل انا بدقسمتي انا اللي مشكلتي اساسا انا على كامل تعصبانه ماحول پیدا به شیعہ سنی معاملات بہت خراب ہوئے تو اني کلبی کے سنی جن اني پابندی قائم تھا رورے قائم تھا نو تو انا کون کا سنی جن اسے فرض بھی کہ اپریشیٹ تو نو حوصلہ افزائی تو بیسٹ سورٹ یا جیک ہمارا حکومت سے جیک سے حوالات تعاون ہے ہم حاضر ہیں کون کا بھی جو کون کا کہ ہمارا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سو جو ہوتا وہ کچھ بھی ہونا کہ ایسے نوجوان نسل میں جائے بدقسمتی کی نہیں معلوم کلبی سے نے ایک تو انہیں شیعہ سنی ویسے سپورٹ سرگاٹ ہے خرابی پیدا تھی اش کلبی سے نہیں تھا شیعہ سنی اسماعیلہ گھڑی پہ ٹیم سے نے تو انہیں چیز کا ختم بھائی اور گیدرنگ مکس گیدرنگ ہے وہ آواز ہے کہ ایسے جو صحیح سپورٹ سے تو صحیح تو ہم زیادہ فائدہ کریں یہ صحیح صحت کا بہترین ایکٹیویٹیز ہیں لیکن ایک ہی نہیں فائدہ سوچ علاقہ ڈنا تو بنا کہ علاقہ ایک تعصبانہ ماحول کا وہ ختم تو کرتا ہوں رول پلے ہے تو ایسے سے ایسے خاص کر سوچ احسان میں حکومتی کے ایجا خانہ دانی احسان میں کہ سوچ تم رول مثبت طریقہ پلے ہے تو علاقہ کا فائدہ بھی سب کا فائدہ بھی اور سپورٹ سے حوالہ مسار ہوگا ریسٹورینٹ سر میں رابطہ کے بھی تو ریسٹورینٹ ریکویسٹ انا کہ تم کہ سگٹی پہ ایک ایجنڈا ہے وہ تو وزیر اعلیٰ صاحب صاحب ٹوک بون ٹوک پہ خاص کر ایسے ادان سپورٹ سے مہر جو کر پونے نش بنن پونے ادان پونے کھولا تو کٹے ان کی ادان گلگت بلتستان میں ادان بہت قسم ادارے ہیں ان بیجا جگ اپوائنٹ ہے ایسا کہ تنخواہ دینا سپورٹ سے ٹیم ہے سنے کم از کم ٹیم ہے سرکاری سطح سنید
स्पोर्ट्स से तरक्की का भाई और बेरोजगारी का कम भाई और स्पोर्ट्स साथ के ऐसे शौक शिबिर ऐसे मुझे का शौक भी कम दम स्पोर्ट्स का तो अनिस यार सिलसिला इंशाल्लाह बस कोशिश करूँ वज़ीर-ए-आला साहब तो कब से सुरेन साहब गाड़ी बनी मामला तो गई इंशाल्लाह सो को मुझे इत्तेहाद पैदा थी गाड़ी बिल स्पोर्ट्स कर स्ट्रगल थी तो नहीं मसले का हल है और बैंक अदान तुषार एक बैंक के वतन वही अदानों पैसा कलेक्शन थे ना लेकिन अना इलाका एक बैंक को जो ₹1 फ़ायदा नहीं तो ए नोट स्पेशली वज़ीर-ए-आला साहब तरफ जो इंस्ट्रक्शन ये कि भाई बाकी जो थोकदुमान तना इलाका तो एक स्पोर्ट्स टीम सो सना मेहरबानी से थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन किए तो हर बैंक एक टीम से बेरोजगारी का खत्म हुई तो इसका इंशाल्लाह जेब का ताउन जो हाजिर है लेकिन करेगा रात सूर्य डे दसों सच्चों करना इंशाल्लाह मेहरबानी रियाज भाई तो बड़ी खुशी भी ले मतलब सपोर्ट से बारा थे ख्याल तो मतलब इजहार कौन दे तो अशोक गजे के हैं कि जब उम्मीद है खुशी थी तो इंशाल्लाह कि मोरी कुछ सजो सा शेयर थी या मुस्तकबिल में या अशोक मतलब है फुटबॉल है यानी कि सपोर्ट से फ्यूचर कोहन हो ब्राइट पोजीशन थैंक यू वेरी मच अशोक साहब मुझे अभी सीनियर बयान शख्सियाती तो अनीस साहब अशोक साहब बयान अनु PTI रहनुमान तो अना से ख्वाहिश भाई कि अनुस का तुम ख्यालात और इज़हार खुद अशोक साहब जनाब अनीस रहमान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम उस्ताद स्पेशल असिस्टेंट टू CM जनाब राजेश यादव मखदूम साहब जनाब रियाज साहब हमारे वज़ीर असगर साहब और दीगर जो हमारे भाई यहाँ पे आए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया गया है स्पोर्ट्स के हवाले से। हमारे हामिद भाई को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक नई क्लब का जो है आज यहाँ पे इब्तिदा होने जा रही है। यकीनन जो है आपको सबसे पहले तो इस बात की मैं नसीहत भी करूँगा कि अपनी स्पोर्ट्स के साथ साथ आप लोग जो है अपनी एजुकेशन की तरफ जो है वो भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि 21वीं सदी का मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास और मौके नहीं है जब तक हम अपनी एजुकेशन को किसी भी फील्ड के साथ जो है वो साथ साथ नहीं रखें। और दूसरी बात जो है वो ये है स्पोर्ट और कल्चर ही वाहिद दो चीज़ें हैं जिनसे आपस में इलाके उनके मोहब्बत जो है वो जुड़ने का सबब स्पोर्ट और कल्चर ही बनते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने खेलों के मैदान को जब तक आप आबाद करोगे उस वक्त तक आपके दरमियान जो है वो आपकी फ़िज़िकली जो तरबियत है, जो फिज़िकली फिटनेस है वो भी हो जाएगी, साथ साथ इलाके का माहौल भी जो है वो बेहतर रहेगा। और उसके साथ जैसे रियाज साहब ने जो बात की, यहाँ पे एक सूबाई हुकूमत जो है वो मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, बैंकों की शक्ल में दीगर प्राइवेट जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको NOC जो है वो GB गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। कोई भी सूबा है वहीं प्रोवाइड करता है कि उसका जो NOC मतलब उनको जो इजाज़तनामा मिलता है अपने इलाके में एक्टिविटीज़ करने का, बिजनेस करने का, तो उनको शुरू में ही जो है वो बोन किया जाए इस बात पे कि आपने जो है वो लाजिम हमारे स्पोर्ट्स की तरफ जो है एक टीम कम से कम आपने उसको कंपनसेट करना है, ताकि आप लोगों का जो है स्पोर्ट्स के साथ साथ आपका फ्यूचर भी बनेगा। जाहिर बात है यहाँ पे हमारे वालिदैन ज़्यादातर यही समझते हैं कि जो बच्चा उनके स्पोर्ट्स के अंदर जाता है, वैसे तो जाके दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ सुकाश खेला, जहांगीर खान बना, अरबों में खेलता है मुख्तलिफ कंपनीज के इश्तिहारात के अंदर, और फिर आप देखते हैं क्रिकेट की टीम जो है वो बहुत आगे, हर खिलाड़ी जो है हीरो भी है, साथ भी जो है पैसा भी जो है उनके पास है। तो ये मौके जो है वो होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल या हॉकी या क्रिकेट जैसी चीज़ों से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। फिजिकली फिटनेस हासिल कर सकते हैं, उसके साथ अपना ज़ाती शौक पूरा कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंपनसेट होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम पहले होता था नेटको के जो है हमें याद पड़ता है, हम छोटे थे, नेटको की तरफ से खुद मेरे ख्याल में उस्ताद मोहतरम ने भी खेला है, उनकी हॉकी की भी टीम थी, उनकी जो है अपना फुटबॉल की भी टीम थी, देगर जो है वो उनके पास टीमें थी, और वो वहाँ से इन खिलाड़ियों को बाकायदा
तनख्वाहें भी जो है या कुछ वजीफा है वो देते थे। इसलिए यही गुजारिश है। और फिर जो है आज कल मेरे ख्याल में कुछ ग्राउंड मजीद बन रहे हैं, मजीद जो है वो ग्राउंड हर इलाके की सतह पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड हो ताकि एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़े। आपने देखा अभी पिछले महीने मेरे ख्याल में यहाँ पीसीसी के जो ऑर्गेनाइज़र वगैरह थे क्रिकेट के लिए, कुछ लड़कों को हमारे यहाँ से टैलेंट हमारे पास मौजूद है, उनको जो है वो यहाँ से सिलेक्शन भी हो गई। हो सकता है मुस्तकबिल में फुटबॉल भी जो है नेशनल लेवल पे तो है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है। आप लोग कोशिश करें, जो है यहाँ की हुकूमत भी कोशिश करेगी, जो भी हुकूमत यहाँ पर पीटीआई की आएगी या फिर नून लीग की आएगी, पीपल्स पार्टी की आएगी, उससे गरज नहीं, हमें अपने इलाके से, आपके मुस्तकबिल से गरज है। इंशाल्लाह आप अपने जो है स्पोर्ट्स के साथ साथ अपनी जो है एजुकेशन की तरफ भी तवज्जो दे। और हमारी तरफ से जो ऑर्गेनाइज़र मौजूद थे यहाँ पे, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंशियल हवाले से या फिर पॉलिटिकल के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम हर किस्म की मदद जो है वो करने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच जनाब अनीसुर रहमान शेख साहब। तो मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी आज इस मीटिंग में हमारी जो मीर साहब के इंतज़ार में हमने 1-2 घंटे इंतज़ार किए, तो टाइम की कमी की वसातत से तो मेरे ख्याल में बस केक काटने का जो मराहिल है हमें तकरीबन उससे अभी गुजरना पड़ेगा। तो एक बार फिर मैं आप सब नौजवान खिलाड़ी जो यहाँ पे आए हैं GB11 के नाम पे जो खेल रहे हैं उनका, और जो दूसरे क्लबों से आए हैं उन सब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त से टाइम निकाला और हमारे इस महफिल को इख्तिताम पजीर तक पहुँचाने में अपना वो किरदार अदा किया। साथ में सब मेहमानों का भी मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। तो GB11 के बारे में मैं बस 2-4 अल्फाज में इसको प्रोग्राम को समेटूँगा। GB11 हमने बनाई है, एक नया प्लेटफार्म बनाया है हमने जो जिसमें नौजवान जो हमारे खिलाड़ी हैं जो मतलब अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई प्लेटफार्म नहीं है या कोई ऐसी क्लब नहीं है, तो ये हमने GB के नाम से इसलिए इस क्लब को मुंतखब किया है ताकि इसमें गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जो नौजवान खिलाड़ी जो अपनी सलाहियतों का मतलब मुजाहरा करना चाहते हैं उन सब के लिए हमने ये प्लेटफार्म इसलिए मुहैया किया कि वो आके हमारे साथ खेले और इस प्लेटफार्म के थ्रू वो अपनी कारकर्दगी को लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे उजागर करें। तो हम शाना बशाना उनके साथ हैं। साथ साथ मैं हनी सारा TV का नहायत मशहूर हूँ कि ऑन एंड ऑफ कैमरा उसने इस क्लब को बिल्ड करने में हमारा साथ दिया, तो मैं बहुत ही उसका मशहूर हूँ और वो हमारी क्लब के एक पार्ट अदा कर रहे हैं वो हमारी इस क्लब को बिल्ड करने के लिए। तो इस हनी सारा TV के परवेश मीर साहब का भी मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ बस अभी केक काटने का इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वो प्रोग्राम है वो करेंगे। मीर साहब बाकी आपके हवाले